Reddy, Director Sai NCO LRP, to deliver welcome speech. Good morning, everybody, and distinguished chief guests of the day on this webinar from Sports Authority of India and Indian Kayaking and Canoeing Association, panel of experts, and participants from all over India, ladies and gentlemen. Kalo India e-Pathshala online athlete coaching and education program organized by Sports Authority of India and the Indian Kayaking and Canoeing Association, hosted by National Center of Excellence, LRP, aim to train athletes of intermediate level from state associations, district associations, clubs, academies, and schools. It is free for all and open to anybody who, who are interested peddlers. On this occasion of inauguration session of online ACAP program, I welcome today's chief guest on behalf of Sports Authority of India and on my behalf, Mr. S.M. Asmi, President IKCA. Welcome, sir. Your presence motivates us and our athletes on this webinar. I also welcome our chief guests on behalf of our organizing committee, panel of experts, and on my behalf, our regional director and principal LNCP Trivandrum, Dr. Kisorji, who is our driving and motivating force in organizing this ACEP program. Welcome, sir. I also welcome our special guests from IKCA on behalf of Sports Authority of India and on my behalf, Mr. Prasant Kuswaji, Secretary General, Indian Kayaking and Canoeing Association, who is fully cooperating and supporting us in organizing this program. Welcome, sir. I also welcome all panel of experts from Sports Authority of India and IKCA, Organizing Committee, HPD and HPMs, participants from all over India. I once again welcome one and all on this webinar. Thank you, sir. Now, I would humbly invite Dr. G. Kishore, Regional Director Sai and Principal RNCP Trivandrum, for the inaugural speech. Thank you, Ms. Kiran. Most respected President of Indian Kayaking and Canoeing Association, Mr. Ashmi, the Secretary General of IKCA, Mr. Prashant Kushwa, my colleagues, Director of NCO LFE, Sri Venkateswar Reddy, and other distinguished and eminent coaches and experts from IKCA and SAI, dear participants. I, at the very outset, place on record our sincere appreciation to the team led by IKCA and SAI LFE for taking a pioneer role in commencing again the third edition of online coach and education program, e-Pathshala, in canoeing and kayaking. The last two sessions, the love of grassroots and intermediate, were quite a good success.
In fact, withstanding all challenges, the team has done it exceedingly well, which could fetch an overwhelming response from the entire country. And I am sure this edition of e-Pathshala will further enable all concerned to raise to further heights and ensure continuity in training. And you want to understand that the experts have ensured that the contents of each sessions are very carefully designed in such a way to ensure progression of each participants and to ensure that their performance is enhanced. So with this third edition, I am sure that all the participants will be able to derive much benefits out of it and will be able to progress and continue the training so that by the time they are tested, their performance will be rather better and they will be able to do well in their respective events. I once again congratulate everybody and especially the IKCA Mr. Office Bearers, Mr. Hashmi and Mr. Prashant Kushwa for their kind support. And in fact, IKCA is one of the associations who has done very well and supported so that we could raise. It's one of the disciplines where we could have the third level of training, and I'm sure that this will be which will definitely benefit all the participants and we will be able to do that. Thank you very much for giving me an opportunity to address this relief forum. I wish this third level of e-Pathshala all very best. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your valuable feedback. Thank you so much. Now, I'm pleased to invite our today's chief guest, Mr. S.M. Hashmi, President IKCA, for the address. Are you hearing? Yes, sir, you are audible. Okay. Respected Regional Director, Director, my colleague Secretary General Prashant Kushwaha ji, all participants, and the members associated with this Khelo India program, this coaching education program of Kayaking Canoeing Association, Indian Kayaking Canoeing Association, and jointly organized with the massive support of Sports Authority of India, Ministry of Sports, Government of India. I am very much thankful to all those associated with this program and doing very well by taking a lot of efforts for organizing such type of active program for the players, coaches, and other technical officials. This is very appreciable and I thanks to each other for their activities on this crucial moment of COVID-19. Really,
We are 5 months in home and doing some programs from Zoom meetings, but we are very much active. We are doing some things and waiting. The time will come for our physically appearance. I am thankful to all participants, especially those conducting these programs, our members, the officials of Sports Authority of India and Government of India, and wishing all success of this program. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much, sir. Now, I'm glad to invite today's guest of honor, Shwa, Secretary General, IKCA, to address our athletes. Very afternoon. First of all, President Indian Kayaking Canoeing Association, Mr. S.M. Hashmi, uh, Regional Director Dr. Kishore, Regional Director of NCOE LFP, sir, our coaches, and Madam, who is the host here, who has given, and in the morning they have given time and they're starting the lecture. I would also like to thank Mr. Pradhan Ji of Sai, who has taken all these things for making this thing happen. And Kishore sir and his team is doing it from almost now 3 months. We are associated. We are thankful for your effort that you are doing huge efforts in field of kayaking canoeing. What I would like to say that with this coaching programs and the effort of coaches which has been put in and the way it has been demonstrated is outstanding. It's storming. You can say like the way these guys, the coaches of Indian Kayaking Canoeing Association and Fraternity has put their subject, the way they have used the software, the IT technologies is one of the best. I have talked to the people in Sai also. They said, in fact, they called me how you are using it. I said my coaches and all the people who are associated with our association are doing it, and they have done a tremendous job. The way the thing should be implemented, they are doing it. जिस तरह से खिलाड़ियों को सिर्फ जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए एक्सरसाइज, उसको उसका एक्सप्लेनेशन देना, उसको समझाना, उसको एक प्रॉपर वे में, ताकि वो प्रॉपर लगे. हमारे खिलाड़ी सेटअप्स लगाते हैं, पुशअप्स लगाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है वो कैसे लगाना है, उसका इफेक्ट कैसे प्रॉपर आएगा. तो जो हमने टेक्नोलॉजी यूज करी है, वो टेक्नोलॉजी से उन प्लेयर्स तक वो मैसेज गया है और उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा. Our players don't know what the technique they have to use while doing the exercises. With these coaching programs with IT supports, our coaches has put in their foot down for showing the way and process of doing the exercise. I am thankful to each and everyone who is associated with us, and I request all the coaches to come together, move forward, and without you, we are nothing. Without you, kids are nothing. Without you, federation are nothing. Without you, Sai is nothing. Because you are there with the kids for 24 hours. You are there daily connected with them. You can make them dream. We are just path you can walk through. So main coaches are there who should motivate them and ask the players to move in a proper direction, in a proper way. So for the same our Indian kayaking canoeing coaches are doing. I'm very much thankful to everybody, each and everybody who is associated with this program, that they are putting their effort towards the Olympic medal and we will achieve it soon.
I would like to put one more thing in your notice. I am very much happy. Yesterday only, CRPF team of India, Kayaking Canoeing Association, has purchased 17 boats, and the best part is that the boats are on individual capacity. हर बच्चे ने अपने स्वयं के पैसों से एक एक बोट और पैडल खरीदा है. ये डेवलपमेंट की तरफ ले जाता है हमको. When you have something of your, if you have a bike of your own, you make it wash, you make it proper maintenance and everything, and if it is somebody's friend or government, the things are moving that way. So अब ये हमारा गेम एक प्रॉपर प्रोसेस पे चल रहा है. जो भी प्रोफेशनल जो लोग जुड़े हैं और जो लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, हम क्रिकेट स्टार्ट करते हैं. जो क्रिकेट का बैट होता है वो 15,000 20,000 रुपीज का आता है. रोज बॉल 200 रुपीज की लगती है. या बैडमिंटन स्टार्ट करते हैं, रैकेट 7,000 से 15,000 का आता है. तो मैं आप सबको कहूंगा, जो साई में है उनको भी, आप अपना स्वयं का इक्विपमेंट लें. उसको तभी आप उसको ज्यादा से ज्यादा आप उसको यूज कर पाएंगे और उसको ज्यादा से ज्यादा आप उसका केयर कर पाएंगे. So this is very good step that CRPF whole team has gone up for the personal equipment due to COVID. And एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा आपको, हमारे शौकीन करके, सुमित शौकीन एक हमारे पैडलर है जो पिछले 4 महीने से हंगरी में है. वहां पे 4 दिन भी प्रैक्टिस नहीं रुकी है. हमारे गेम को कोविड से या किसी से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. आपका खुद की सीट है, आपका खुद का पैडल है और आपकी खुद की बोट है. तो मेरी कोचेस से और जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, जो भी इसके माध्यम से जहां तक मैसेज पहुंचे, आप इसको स्टार्ट करें. इसमें कोई भी इन्फेक्शियस प्रॉब्लम ही नहीं है. बच्चा अपना आता है, अपनी वार्म अप करेगा इंडिविजुअल कैपेसिटी पे 6 मीटर्स का जो 1 मीटर का जो डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करते हुए. उसके बाद जो उसका इक्विपमेंट है वो पर्सनल है. सब सेंटर्स में बोट्स हैं. तो प्लीज उसको ज्यादा से ज्यादा कोचेस से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को पानी में डालें. ऑब्वियसली आपके लोकल जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उससे परमिशन लेके, और इसको प्रमोट करें कि हमारा इंडिविजुअल गेम है जिसका किसी से कोई कांटेक्ट नहीं होता. ना पानी से कांटेक्ट है, ना किसी दूसरे बच्चे से, ना किसी चीजों से. सो तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि वहां पे 3 इवेंट हो गए पिछले 2 महीने में. आप नेट पे देख सकते हैं, हंगरी में 3 नेशनल लेवल के इवेंट हो चुके हैं वहां पर, जो क्लब चैंपियनशिप्स होती हैं. तो आप लोग भी इसको प्रमोट करें, पुश करें. और कोचेस के लिए है सब कुछ. द्रोणाचार्य अवार्ड आप ही को मिलना है, हमें या रीजनल डायरेक्टर साई को नहीं मिलना. अर्जुन अवार्ड बच्चों को मिलना है, जॉब्स बच्चों को मिलनी है, और जो 2 करोड़ इनाम मिलना है, जो 2 करोड़ गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड, दैट इज आल्सो गोइंग टू यू ओनली. सो पुट योर एफर्ट ऑन ऑल पर्सनल लेवल्स. वर्क फॉर योरसेल्फ. पहले आप अपने लिए काम करें, अपने लिए सोच के अपना बड़ा टारगेट बना के उसको अचीव करें. ज्वाइन योर सेल्फ कमर्शियली. टारगेट करें कि वो 2 करोड़ रुपए, मैंने पीछे भी कहा था और आज भी कहता हूँ, एक आईएएस की तनख्वाह 2 लाख रुपए होती है, साल की 24 लाख होती है, और 10 साल की 2 करोड़ 40 लाख होती है एक आईएएस की, जो कि इंडिया में कुल आप और उसकी उम्र आपको ही पता होती है. आप 22 साल की उम्र में 10 साल में जो आईएएस या डॉक्टर कमाता है वो आप कमा सकते हैं. प्लस उसके बाद जॉब्स अलग है. तो प्लीज थिंक बिग, थिंक हायर, work for yourself, work for kayaking, and work for federation. Sai and a federation is always standing beside you, as Mr. Kishore said, and as you know, the president, Mr. Hashmi, whenever we are requesting him, he is always there morning 7 o'clock, evening, or whatever we request him. I am extremely thankful for his time and his effort. And Mr. Kishore, 7 o'clock is before 2 minutes there. So this shows the effort. The coaches all over India are there. So please, coaches, आप अपने सब बच्चों को मोटिवेट करें, अपने पैडलर्स को मोटिवेट करें, उन्हें कमर्शियली समझाएं. आप ये करेंगे तो आपको 2.5 करोड़ मिलेगा और आपकी तनख्वाह जो है आप आईएएस से ज्यादा कमाएंगे, और नाम, फेम और बाकी चीजें अलग हैं. So please connect them commercially and move it commercially, and then only we can achieve. Then only India can achieve. With this, with this I will congratulate all the coaches, and best of luck to all the coaches and paddlers who will be attending this program. Wherever federation is required, we are standing for you. To Sai as well, wherever it is required, we are there for you.
Thank you, sir. Thanks for inviting me. Thank you so much, sir, for such a motivational speech. Thank you, sir. Now I would like to invite Arjun Awadi, Saji Thomas, Center in Charge and Coach, Thai NCO LRP for the deliverance of vote of thanks. Respected all the dignitaries, parents, coaches, and my dear athletes. जैसे आपको सबको पता है, हमने सक्सेसफुली जो फर्स्ट पार्ट ऑफ ई पाठशाला हमने कंप्लीट किया है, तो ये जानने में बहुत खुशी हो गया। काफ़ी जगह से हमारे को इन्फॉर्मेशन मिला, ये उनके लिए जो कई लोगों के लिए, कई लेवल, कई स्टेज का लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। कई लोग सुबह जो अटेंड नहीं कर पाया, वो लोग मैक्सिमम बाद में उनको कई माध्यम से, कई और माध्यम से हमने जो ऑलरेडी पोस्ट करके रखा है, उसमें से देख के लोग फॉलो करने के लिए कोशिश किया। वो अच्छा, उसमें से अच्छा फीडबैक मिला। उसमें से कई कोचेसों को भी, जो नए नए कोचेस है, उन लोगों को भी, कई लोगों को हमारे को फीडबैक मिला। ये जो सेशन है उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहा। तो कई प्लेयरों को, जहाँ उनको अच्छा कोचेस नहीं है, तो उनके पास टैलेंट है, ऐसे लोगों को, उनको भी बहुत मदद मिला। हम उनको भी बोल रहे हैं, अगर आपको जब भी अगर अच्छा पोटेंशियल आपके पास है, तो आपको ऑलवेज ये साई का अपॉर्चुनिटीज है कई सेंटरों में। तो साई एनसीओ आलपी में भी हमारे बहुत अच्छा फैसिलिटीज है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज वी हैव हियर, तो यू कैन कम एंड ज्वाइन हियर। इसके साथ साथ हमारे ये सेकंड सेशन, सेकंड पार्ट ऑफ ई पाठशाला इधर आज से स्टार्ट हो रहे हैं। ये इसमें हमने सेकंड स्टेज में काफी कुछ हमने ऐड किया है नया। उसमें से हमने आपको जो रियल कैनोइंग कायाकिंग का जो टेक्निक्स और उनका डेमोन्स्ट्रेशंस, फॉल्ट एंड करेक्शंस, ये सब, इसके बाद साथ साथ टैक्टिक्स और ट्रेनिंग का कॉम्पिटिशन रूल्स, ये सब इसी सेशन में हमने ऐड करके रखा है। इसलिए आप लोगों को मिस नहीं करना, ये शुरू से लास्ट तक एक्टिव पार्टिसिपेट रहो। जब भी आएगा तो उसमें नेक्स्ट 5 मिनट बिफोर आके इसमें ज्वाइन करें, या शुरू से लेके लास्ट तक आपको इसका फायदा मिल सके। तो ये हमारे जो फर्स्ट सेगमेंट में इतना सक्सेसफुल होने के लिए हर जगह का सपोर्ट का हमारे को जरूरत था, तो वो हर जगह से हमारे को मिला है। स्पेशली हमारा कैनोइंग कायाकिंग एसोसिएशन है, हर जगह का हर तरह का सपोर्ट उनको मिला। हमने जब कुछ भी मांगा तो हर तरह का सपोर्ट मिला उनको। कोचेस का कॉन्फ्रेंस भी रखा, इसमें प्लानिंग भी किया, हमारे कोचेस के उनका साथ टाई अप करके प्रोग्राम बनाया, बहुत उनका भी फीडबैक्स मिला। तो हर तरह का सपोर्ट मिला इनके लिए। IKCA का प्रेसिडेंट श्री SM हाशमी सर को हमारा थैंक्स बोल रहा हूँ, थैंक यू सर। इसके साथ साथ सेक्रेटरी प्रशांत कुशवाहा सर हर जगह हर तरह का सपोर्ट दिया है। हमारे जो कोचेसों के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बातचीत करते हैं उन लोग उन्होंने, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। इसके बाद हमारे रीजनल डायरेक्टर है डॉक्टर जी किशोर सर को हर तरह का सपोर्ट, हमारे को कुछ भी कमी होने नहीं देगा। वो हर तरह का सपोर्ट हमारे को देगा। जब भी मांगता है, कोई भी प्रॉब्लम सर के सामने अगर हमने बोलेगा तो इमीडिएटली उसको सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन देता है। सर आज सुबह भी मैंने जब LSC में कई बार देखा है, उधर ग्राउंड में प्लेयरों के साथ सर को रनिंग करते हुए हर दिन मिलेगा। तो हर तरह का सपोर्ट साथ में रह के आप सपोर्ट दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। साथ इसके बाद हमारे डायरेक्टर सर है, सर हर कदम में हमारे को डायरेक्शन दे रहे, तो किस तरह का करना है, क्या है, तो कोऑर्डिनेशन किस तरह करना, तो हर तरह का सपोर्ट सर की तरफ से है। सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद जो है प्रोग्राम में सक्सेसफुल करने के लिए बहुत सारे कोचेसों का मदद इसमें है। इसमें IKCA का नॉमिनेटेड कुछ कोचेस है, कुछ साई कोचेस है, और कुछ आउटसाइड से कुछ लोग हैं। तो हर लोगों का एक ग्रुप है इसमें काम कर रहे हैं। तो एक्सपर्ट्स, कोचेस और ऑफिशियल्स, वो सबको मेरे तरफ से धन्यवाद दे रहा हूँ, थैंक यू सर।
इसके बाद है हमारा एथलीट्स है और पेरेंट्स, इसमें एक्टिव इन्वॉल्व होने के लिए उनको मदद करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, उनको मोटिवेशन देता है उनको पेरेंट्स और साथ साथ एथलीट्स। ये दोनों आप दोनों को हमारे तरफ से धन्यवाद दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। साथ साथ है हमारा इधर अनाउंसमेंट हमारे जो कोऑर्डिनेटर करता है, एंकरिंग कर रहे हैं किरण है, किरण मैडम को भी धन्यवाद। थैंक यू मैम। जो ये प्रोग्राम को हमेशा उसको अच्छी तरह सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए कोशिश कर हर तरह का काम करने वाला है हमारे दो कोचेस है, वो सिटी कुमार एस एशियन गेम्स मेडलिस्ट है और अंग्रेज सिंह, ये दोनों को धन्यवाद दे रहा हूँ। थैंक यू सर। और इसके साथ हमारे को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है हमारे डीजी डायरेक्टर जनरल प्रधान सर से। वो नया इन्वेंशन करने के लिए सर हर तरह का सपोर्ट दे रहे हैं, हर तरह का मोटिवेशन दे रहे हैं, हर एरिया में हर एक को बताएगा नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, तो हर तरह का सपोर्ट हर मोटिवेशन के लिए श्री प्रधान सर को भी धन्यवाद दे रहा हूँ। साथ साथ हर एक मदद हर एक जगह पे हमारे को ब्लेस कर रहे हैं, भगवान को भी धन्यवाद देके मैं अपना ड्यूटी से विदा ले रहा हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। Thank you so much, sir. Now we will proceed towards our training session of today. Now, for the introductory part and explanation part, I would like to welcome and invite our today's expert coach, Mr. L. Chanta Kumar Singh, ICF ITO Level 3 Expert Coach and ex-Chief Master Petty Officer, Indian Navy. I welcome you, sir. Thank you very much, ma'am. Good morning to all. Respected President IKCA, Sri SM Hasmi sir. Respected Principal LNCP, Dr. G. Kishore. Respected Secretary IKCA, Prasant Kuswa sir. We are very thankful for coming together again for this coaching education program. हम तहे दिल से आभारी है सर साई और इंडियन कायाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन को कि हमें ये कोचिंग एजुकेशन प्रोग्राम इंटरमीडिएट लेवल का दोबारा हमें ये एक प्लेटफॉर्म मिला और ये कोचिंग एजुकेशन प्रोग्राम हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड आई एम थैंकफुल टू डायरेक्टर एनसीओ एलपी एंड वेंकटेश्वर रेड्डी सर फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड होस्टिंग दिस education platform. And I'm very thankful to all the coaches also for contributing and for successful conduction of this education program. और आज मैं चाहूँगा कि सर जैसे कि हम दोबारा ये शुरू करने जा रहे हैं, सभी खिलाड़ी जो इंटरमीडिएट लेवल का है, आज नए नए चेहरे भी देखने को हमें मिल रहा है, तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि ये जो कोचिंग प्रोग्राम है इसको खाली एक्टिविटी के तौर से ना समझे, इसका जो फायदा है उसको भी आपको समझना चाहिए। जैसे कि आप अभी अलग अलग जगह में हर जगह पे एक्टिविटी शुरू नहीं हुआ है, काफ़ी दिन से एक्टिविटी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी वगैरह नहीं हो रहा था, और कुछ हमने बिजनेस लेवल पे किया तो एक्टिविटी उसमें थोड़ा इन्वॉल्वमेंट हुआ फिजिकली, और कुछ जगह में जैसे कि IKSA ने इनिशिएटिव लेके कुछ बहुत के एक्टिविटीज़ वगैरह NC भोपाल सेंटर में शुरू करने जा रहा है और कुछ कर भी रहे हैं। उस तरह जैसे सेक्रेटरी जनरल सर ने बताया हमें कि हमें जो कायाकिंग कैनोइंग है ये रिलेटिवली सेफ है अगर हम प्रिकॉशन जो गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए हम करेगा तो ये काफ़ी हम लोग आगे जा सकता है। जैसे कि हमें ये इंफॉर्मेशन है कि जापान में 1 जून से ही उनका नेशनल टीम का कोचिंग शुरू हो गया है, वियतनाम में चल रहा है, ताइवान में चल रहा है, और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में जहाँ ऑफिशियली नहीं मगर उनका जो क्लब्स है, उनका जो इंडिविजुअल कोच है, इंडिविजुअल पैडलर्स है, वो अपने अपने जगह पैडलिंग कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि LAP में हर घर काफ़ी
कैनल्स के पास में ही है और अपना साई भी कैनल के पास ही है। तो जैसे सुबह हुआ अपना इंडिविजुअल बोट वगैरह हमें डिटेल कर अगर खिलाड़ियों के ऊपर कर देते हैं तो एक प्रोटोकॉल के हिसाब से वो अपने अपने बोट लेके पानी में उतर के जा सकते हैं। और प्लस पॉइंट ये है कि जैसे खिलाड़ी प्रोफेशनल होने लगे अपने अपने जो इक्विपमेंट जैसे सीआरपीएफ टीम ने खरीदा है उस तरह अपना ओन इक्विपमेंट होने से ये बहुत हम लोग बहुत सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। बाकी कंट्री में भी जो यूरोपियन कंट्रीज है उसमें अपने कब या अपने घर से जो कैनल जहाँ अवेलेबल है वहाँ बोट उतारते हैं और चला के अपना वर्कआउट करके कोचेस ऑनलाइन जो है ऑनलाइन मॉनिटर कर रहे हैं और वो कोचिंग भी दे रहे हैं। और कुछ जगह में तो क्लब के साथ मोटरबोट में जो नॉर्मल प्रैक्टिस है वो चल रहा है। और फेडरेशन की तरफ से हमें ये इंफॉर्मेशन भी आया है कि अभी चैंपियनशिप शुरू होने लगे हैं। अभी नवंबर 7 और 8 तारीख को इंडियन कायाकिंग कैनोइंग फेडरेशन को साइप्रस कैनोइंग फेडरेशन की तरफ से हमें एक इनविटेशन भी आया है जिसमें 4 खिलाड़ी और एक कोच जो है उनके लिए वहाँ इनविटेशन है। वहाँ रहना खाने के लिए आधा पैसा देना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट के लिए वहाँ टू एंड फ्रो के लिए फ्री है, बोट का भी रेंटल फ्री है। बस वो सब मोटिवेट होना चाहिए। वहाँ अभी आने वाले जो एशियन क्वालिफिकेशन राउंड और ओलंपिक क्वालिफिकेशन राउंड उसके लिए प्रिपरेशन चल रहा है। तो ये सब आपको जो खिलाड़ी जो सुन रहे हैं उनको आपको एक मोटिवेटिंग फैक्टर होना चाहिए कि आपके पास एक लक्ष्य है, सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। तो काफ़ी कुछ है। जैसे आप पैडलिंग जब तक नहीं कर पाते हैं तो भी आप फिजिकली एक्टिव होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो आपका जो फिटनेस लेवल है अगर वो मेंटेन करते हैं तो पानी में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको फिर पिकअप करने से। अगर जैसे हमारे स्पोर्ट्स है उसमें कई सारे कम्प्लेक्सिटी है, आपको एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, पावर चाहिए, स्पीड चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, काफ़ी कंपोनेंट्स है, एक ही के ऊपर नहीं है। तो आप ये जो फिजिकल कंपोनेंट्स है एंड फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स है इसको आप मेंटेन करेंगे तो आप टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। आपका जो मसल्स एक्टिविटी है सेम हम जो है आप साइमुलेटर है जैसे अर्गोमीटर है या जब जिम करते हैं स्पेसिफिक जो बायोमैकेनिक्स है उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो मसल एंड्योरेंस और जो कैपेबिलिटी है वो मेंटेन करेंगे और तुरंत आप पानी में जाएगा तो आपको 1 महीना 2 महीने में आप एडॉप्ट कर सकते हैं। बस हम इसी कोचिंग के थ्रू हम वही पहले भी जब ग्रास रूट लेवल और फाउंडेशन लेवल पे हमने वही कवर किया है और आगे आने वाले जो सेशन है उसमें भी हम यही करने जा रहे हैं। उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि हम ये कोचिंग प्रोग्राम जो है करते हुए खिलाड़ी या कोचेस जो है उस एक शॉर्ट टर्म गोल जो सामने जो इमीडिएट गोल है उसकी तरफ देखते हैं कि हाँ अभी तो कोई चैंपियनशिप नहीं है, अभी प्रैक्टिस कैसे करें। या जरूरी ये होता है कि मेरे ख्याल से कि हमें लॉन्ग टर्म गोल के हाईली मोटिवेटेड आपका एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। हम जब नेशनल गेम में आते हैं तो खिलाड़ियों से लिखवाते हैं, लोग मेंटेन कराते हैं, व्हाट इज योर अल्टीमेट गेम, व्हाट हु इज योर रोल मॉडल, आपके जो फिजिकल स्टेटिस्टिक्स, आपके जो स्ट्रेंथ वगैरह, आपके जितने भी आपके जो आप डेवलपमेंट अचीवमेंट है वो हम लिखवाते हैं ताकि आप कहाँ हैं अभी वो देखें और आने वाले फ्यूचर में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहता है वो हम कवर करें। देन अगेन आपके उसको देखने से क्या है आपका पीछे आप कहाँ से शुरू किए वो भी आपको पता चलेगा। दैट इज इटसेल्फ इज ए मोटिवेटिंग फैक्टर। देन यू जैसे आप लोग को मेंटेन करते हैं जो हम जैसे आप पीछे मुड़ के देखोगे आज का जो हम सेशन है आज से लेके जो करने वाले सेशन है इसमें ये सब रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो बाद में जाके आप आज से जो 21 दिन का वर्कआउट है उसके बाद आप देख सकते हो कि शुरू होने से पहले मेरा फिजिकल स्टेटस क्या था, कैपेबिलिटी, और खत्म होने के बाद मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ। जो अपने आप भी आप एनालाइज कर सकते हो। दिस इज रिकॉर्डेड एंड इट विल बी एज लॉन्ग एज यूट्यूब एग्जिस्ट। ये हम मॉनिटर कर सकते हैं, अपने आप को आप एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि आपको एक लॉन्ग टर्म ये आपका एम एंड ऑब्जेक्टिव चाहिए। आप देखिए कि खेल जो है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स और जो साई ये हमें गवर्नमेंट इन इंडिया एट लार्ज कितना हमें सपोर्ट दे रहा है, फेडरेशन कितना डेडिकेटेडली काम कर रहा है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ एक ट्यूनिंग, यहाँ एक कम्युनिकेशन गैप है। खिलाड़ी खेल तक ही सीमित हो जाते हैं, कोचेस कोचिंग की तरफ और फेडरेशन अपना वर्कआउट करते हैं। देन
गवर्नमेंट का काफी सारे अच्छे स्कीम्स है, साई के काफी सारे स्कीम्स है, वो हम फायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि दिस इज आई थिंक इट्स अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, लैक ऑफ अवेयरनेस। तो इस गैप को कम करने के लिए ये जो आज का प्लेटफॉर्म है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि हम कोचिंग के दौरान भी अलग अलग अपना जिस जगह पे हम कोचिंग दे रहे हैं, चाहे हम यूनियन में मिलिट्री फोर्सेस में या मिलिट्री फोर्सेस में या स्टेट में कोचिंग दे रहा हो, तो हमारे पास एक स्पेसिफिक टास्क रहता है एज ए कोच, तो उसमें ध्यान देते हैं, ताकि हम एजुकेशन पार्ट में ना ध्यान देते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक टाइम मिला है, एक स्टेज मिला है कि हम सबको ये शेयर कर सके एक दूसरे का। जो अभी जैसे सेक्रेटरी जनरल सर ने बताया कि हमारा एक इसमें मैं मेंशन करना चाहूँगा कि सभी खिलाड़ियों को, मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, कि क्या हमें कुछ स्पेशल अवार्ड्स रखा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, दैट इज ऑल्सो ए मोटिवेटिंग फैक्टर, कि अगर हम अल्टीमेटली क्यों कर रहे हैं, लास्ट में हमारे देश में तो उतना एडवांस नहीं है स्पोर्ट्स की, इसको लाइफस्टाइल की तरह हम देखें, तो जैसे इसको लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करने के लिए हमें मेंटली एंड फिनेंशियली सिक्योरिटी चाहिए। अगर आप इस स्पोर्ट्स में आपका 5 साल 10 साल डाल रहे हो, तो वो आगे आपके लाइफ में, करियर में क्या काम आएगा, ये बहुत जरूरी है जानना। जैसे मैंने बताया आपको, ग्रास रूट लेवल से जैसे शुरुआत होता है, अगर आपके अंदर स्पोर्ट्स में कुछ करने की इच्छा है तो ग्रास रूट लेवल से शुरू से लेके आपको जब तक आप गेम नहीं छोड़ता है, चाहे मास्टर्स में पहुंच गए, मास्टर के बाद भी आप रिटायर्ड भी हो गए, आप तो भी हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे फैसिलिटीज और स्कीम्स हैं जिससे आप फायदा उठा सकते हो। और अगर ये जान गए तो आप स्पोर्ट्स में बिना बेहिचक आप स्पोर्ट्स में आ पाओगे। तो ये सब आपको जानना जरूरी है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर मैं मेंशन करूंगा तो एक ग्रास रूट लेवल का बच्चे जो है, अगर आप एजुकेशन ड्यूअल कैरियर डेवलपमेंट के बारे में जानना जरूरी है। बेसिकली ग्रास रूट लेवल में मीन्स व्हेन यू आर इन स्कूल, जब स्कूल में आते हैं, प्री स्कूल से शुरू होता है, बट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्कूल। स्कूल में आते हैं तो ये स्पोर्ट्स खेलने का क्या फायदा है आपको? स्पोर्ट्स खेलने से आपको एकेडमिकली तो अच्छा ही होगा, आप सोशली आप बॉन्डिंग, आपका पर्सनैलिटी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका एक्टिविटी and you will mentally and physically you will be very alert. It will only add आपका एजुकेशन में और एनहांस करेगा, आपको और ग्रैपिंग होगा कंटिन्यूअली आप। और this is science has proven that if you indulge sports or music in your lifestyle, अगर आप पढ़ाई भी करना चाहते हो, आपको स्पोर्ट्स से लव नहीं है, तो भी आप पढ़ाई में और अच्छा कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि ड्यूअल कैरियर इन अदर कंट्रीज इट इज कंपल्सरी, स्पोर्ट्स इज कंपल्सरी। सो जबरदस्ती स्पोर्ट्स कराना नहीं है, इसका इंपॉर्टेंस जानोगे तो अपने आप अंदर से आप निकलेगा। तो जैसे ही स्कूल लेवल में आया तो उसके साथ साथ कम्प्लीमेंट क्या देता है, स्कीम्स है। अगर आप स्कूल लेवल में आप रिप्रेजेंट करोगे अपना डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या कंट्री, उसके हिसाब से स्कूल गेम्स होता है, नेशनल गेम्स। वही सेम वैल्यू आप नेशनल लेवल में ओपन लेवल पे नेशनल सब जूनियर चैंपियनशिप या अंडर 14 या अंडर 12 करते हो, तो भी उसका सेम वैल्यू आपका जो स्कूल लेवल का गेम का जो सर्टिफिकेट है दैट इज काउंटेड। एंड अगेन कमिंग अप, आपका एडवांस में, हायर एडवांस में आ जाता है, आप पीयू आ गया, आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज में आ जाता है, तो भी इंटर यूनिवर्सिटी रहता है, नेशनल चैंपियनशिप, वर्ल्ड इंटरनेशनल, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स वगैरह रहता है, चैंपियनशिप रहता है। तो वो उसमें भी आपको आपके एजुकेशन के को सपोर्ट करता है, चाहे आप मेडिकल में, इंजीनियरिंग में या लेट इट बी एनी कोर्स आप जाते हो, तो भी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह जो है हार्डली आप एजुकेशन से ना घुस पाए, मगर आप स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू आप जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, आप लवली यूनिवर्सिटी ले लो, पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी एंड लॉट्स ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज आर देयर व्हिच कैन सपोर्ट यू इन योर एजुकेशन एज वेल। सो ये जो चीजें हैं खाली खिलाड़ी कोचेस और फेडरेशन को नहीं, जो खिलाड़ी इसके साथ जुड़ा है वो अपने ब्रदर्स को, अपने पेरेंट्स को भी बताए, कोचेस उनको गाइड दे कि इससे क्या क्या फायदा हमें होने वाला है स्पोर्ट्स से। तो बीइंग ए वाटर स्पोर्ट्स, हमारे पास ओलंपिक में हमारे तीन डिसिप्लिन है, पैरा कैनो आ गया, कैनो स्पिन, कैनो स्लालॉम, एंड अदर देन दैट हमारे पास एशियन गेम्स में भी काफी सारे इवेंट्स है। वी हैव अराउंड 13-14 डिसिप्लिन अंडर अस, तो उसको बहुत सारा है। उसके अलावा हम कमिंग टू द स्पोर्ट्स, द मेन जनरल स्पोर्ट्स अगेन, आप जो यूनिवर्सिटी लेवल से आप जाते हो तो आपको एक जैसे जैसे प्रोग्रेस होता है तो आप उसके बाद मास्टर्स आता है, उसमें भी आपको काफी अपॉर्चुनिटीज है। जो बहुत सारे स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट है, नॉट ओनली फ्रॉम, कोई जरूरी नहीं कि कैकिंग कैनोइंग से ही हो,
अगर वो स्विमिंग जानता है, अगर वो इंटरेस्टेड है, तो मास्टर्स में भी वो आ सकता है, आगे जाके हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट है जो लाइफ टाइम में बहुत कुछ करना चाहे, एजुकेशन की वजह से, जॉब की वजह से, या कोई रेस्ट्रिक्शन की वजह से हम अगर रुक जाते हैं एक स्टेज में आके, तो ये एक स्पोर्ट्स ऐसा है जिसके जरिए हमारे जो बहुत सारे डिसिप्लिन है उसके जरिए आप अपने आप को फिर रीस्टैब्लिश कर सकते हो। यू कैन रिप्रेजेंट द कंट्री in lots of disciplines hours, which is very important. Hello, am I audible? Hello. Yes sir, yes, audible sir. Hello. Yes sir, you are audible sir. Okay, so coming to the point again, this जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने आपको ये सपोर्ट देने के लिए हर स्टेज में, जैसे मैंने बताया, मॉनिटरी जो बेनिफिट है, आप एजुकेशन जब कर रहे हो तभी भी आपको हर साल स्पोर्ट्स जब खेलते हैं उसका हर स्टेज में रीइंबर्समेंट होता है। आपका रीइंबर्समेंट तो होता ही है, या नेशनल स्कूल गेम्स हो या आप यूनिवर्सिटी में जाओ तो भी मॉनिटरी बेनिफिट है उनका रहता ही है। उसके अलावा आप कोई भी स्टेज में आप रिप्रेजेंट करो, या आप नेशनल में, इंटरनेशनल में, एशियन गेम्स, ओलंपिक्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप, Commonwealth Games, wherever you represent, Government of India has 2018 में उसके बाद भी अपडेट आ गया होगा, 2018 में हमें एक मॉनिटरी बेनिफिट के लिए भी बताया हुआ है, ठीक है। तो उसमें हर सभी का आप देखिएगा, इसमें ग्रुप में भी हम शेयर कर देंगे। आज सभी टाइम की कमी के कारण हम वो शेयर नहीं कर रहे उसमें। तो ये है, जैसे आप पैरा अगर आप अपंग है तो भी आपके लिए डिफरेंटली एबल है तो भी आपके लिए हम ये फेडरेशन के माध्यम से आप अगर खेलते हो तो वो मिनिस्ट्री ऑफ जो स्पोर्ट्स है उन्होंने आपके लिए अपना एक जरिया दे रखा है स्पोर्ट्समैन के लिए। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेलते हो यूनिवर्सिटी तरफ से, या ओपनली आप कोई भी जूनियर लेवल पे इंटरनेशनल खेलते हो या सीनियर लेवल पे कोई भी, तो उसके लिए अलग अलग क्राइटेरिया रखा है। अलोंग विद दैट वो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट दे ही रहा है। उसके अलावा आप एशियन गेम्स या ओलंपिक में जाते हो तो आपके हर स्टेट से भी आता है। तो बीइंग स्पोर्ट्समैन ऐसे नहीं कि स्पोर्ट्समैन रह जाता है। अगर हम करियर में कंसेंट्रेट करें, इसको एक अपने करियर की तरह, स्पोर्ट्स को करियर इसलिए मानते हैं, करियर की तरह बनाए कि हाँ मुझे कौन सा साल में कौन सा रिप्रेजेंट करना है, मेरा एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, और इसमें टारगेट किया जाए तो स्पोर्ट्समैन के भी बहुत सारे एग्जाम्पल रहा भी है। आप देख सकते हैं कि वो बहुत सारे आप मॉनिटरी बेनिफिट भी ले सकते हैं, करोड़ों में ले सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी आपको देते हैं, डिपार्टमेंट्स देते हैं, बहुत सारे जैसे बेनिफिट है वो उठा सकते हैं। ओके, तो कमिंग टू द पॉइंट, आप अगर नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि हम रीस्टार्ट कैसे करें। इसमें एक जब रीस्टार्ट करते हैं तो यूके वगैरह में फॉलो अप हो रहा है कि स्टेप करके एक प्रोग्राम है वो फॉलो अप कर रहे हैं यूके में। स्टेप मॉडल में क्या होता है, आप जहाँ रह रहे हैं, आपका स्पेस, कोई भी आप घर में रह रहा होगा, कोई हॉस्टल में रुक रहा होगा, कोई साय में या एकेडमी में, जहाँ है अकॉर्डिंगली आप जब हम दोबारा स्पोर्ट्स करने जा रहे हैं तो चारों चीजों को ध्यान में रखें। स्टेप इसलिए बोला है कि STEP फर्स्ट एस जो है, आप स्पेस के ऊपर, आप जहाँ रहता है, आप पहले आप वर्कआउट करने जा रहे हो तो उसको ध्यान में रखें, ठीक है। आप अगर बाहर भी घूमने जाते हैं, जॉगिंग करने जा रहा है या कोई पार्क में बैठा है तो ध्यान रखिए कि अभी कोविड-19 जो है इट इज नॉट फिनिश। रिसेंटली अभी सुनने में आया है कि हवा से भी फैलता है, तो आप मास्क पहनना जरूरी है। अगर आप करते हैं तो सिक्योर जगह में होना चाहिए, आप कन्फाइंड जगह में, एसी हॉल में नहीं होना है। बहुत कुछ जो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। करते समय आपको स्पेस के, अपने ही स्पेस को, फिर जब आप एक्सरसाइज करते हो उस स्पेस के अकॉर्डिंगली कोच को उसको प्रोग्राम करना है, प्रोग्राम बताना है कि आप अपने कहाँ रह रहे हो, आपके पास क्या है, क्या चीज। उसके बाद आप क्या करने जा रहे हो, कि हाँ स्पेस भी है, एक कन्फाइंड अभी हम करने जा रहे हैं 21 दिन का। इसमें हर बार एक या दो जगह में हम करेंगे, बार बार करेंगे तो एथलेट्स भी बोरिंग होता है। तो हम बहुत सारे चीजें हैं क्वालिटी से जो कंटेंट्स है हम इसमें डालेंगे। तो कोचेस को इसके अलावा कोचिंग दोबारा शुरू करने के लिए ये अपने जो क्या टास्क कराता है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तीसरा पॉइंट, उनके इक्विपमेंट, आप क्या इक्विपमेंट यूज करते हो, आपके घर में क्या है, ठीक है। आप बोट भी चलाते हो या कुछ भी, आप जिम में जाते हो, कहीं भी रनिंग भी जाते हो, अपना इंडिविजुअली कर रहे हो, तो उसको भी ध्यान देके आप अपना उसको भी चेंज करके एक समझ लीजिए आपके पास
एक जिम नहीं है, तो आप क्या चीज़ कर सकते हैं, फ्री हैंड क्या क्या जो आपके स्पेसिफिक मसल है, कौन से तरीके से आप डेवलप कर सकते हो, क्या चीज़ है जो अभी हमारे जो आने वाले टारगेट है, समझ लीजिए अभी नवंबर में एक अभी साइप्रस में जाना है आपको, तो उसके अकॉर्डिंगली आप किस तरह अपने आप को डेवलप करोगे, ठीक है, जो प्लान है अकॉर्डिंगली पैराडाइज आप कैसे करोगे। देन लास्ट में आ जाता है चौथा, पीपल, आप जिसके साथ कर रहे हो, जिस स्पोर्ट्स के साथ या आप एक टीम बना के कर रहे हो, तो वो कौन है, किस तरह आप उनको बदल बदल के करोगे या आप किस हिसाब से उनके साथ जुड़ के करोगे, ये चार उस चीज को ध्यान में रख के करना चाहिए। आगे हम डिस्कस करेंगे। कमिंग टू द पॉइंट, टाइम की कमी के हिसाब से हम आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से इनपुट है। जो आगे सेशन है, प्रैक्टिकल सेशन है आज का, आज से शुरू करते हैं, क्योंकि हम आज से लेके हम सोच रहे हैं कि आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली ऊपर की तरफ ले जाएं। तो नेक्स्ट सेशन आई एम हैंडिंग ओवर टू आवर लीड कोच अंग्रेज कोसाब। कोसाब, आर यू रेडी? Thank you, sir. Thank you very much. Yes, sir. I'm ready. Thank you, Jayanta Kumar sir, for valuable feedback and motivation to our athletes कि उनके लिए क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हैं, कहाँ कहाँ से वो शुरुआत कर सकते हैं और कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। सो गुड मॉर्निंग ऑल डेलीगेट्स एंड रिस्पेक्टेड कोचेस एंड एथलीट्स। तो जैसे कि आपको पता ही है, हम सेकंड स्टेज में हैं, शुरू करने जा रहे हैं अपना प्रोग्राम इंटरमीडिएट लेवल एथलीट्स का। तो आज फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे में हम जस्ट वार्मिंग अप और जनरल कंडीशनिंग का 10 एक्सरसाइज 10 मिनट टोटल वर्कआउट है हमारा, तो एक्सक्लूडिंग वार्म अप एंड कूल डाउन। तो 45 सेकंड इसमें एक्सरसाइज रहेगा और 15 सेकंड रेस्ट रहेगा, तो टोटल 10 मिनट वर्कआउट है, 10 एक्सरसाइज है। और प्लीज सभी एथलीट्स स्टैंड अप फ्रंट ऑफ योर कैमरा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम। मेरे साथ दो एथलीट्स हैं मेरे, अक्षय श्री एंड वेगा प्रदीप। सो हम वार्म अप से स्टार्ट करेंगे। सभी एथलीट्स अपने कैमरा के सामने आ जाओ, स्टैंड अप हो जाओ, अपना सूटेबल प्लेस में अपना कैमरा सेट कर लो। So now starting from warming up, first Surya Namaskar exercise for 20 seconds. Ready? Back. Very good. Okay, so now next rotation exercise, 15 minutes on exercise. Ready? Change exercise, single arm rotation, backward first. Change reverse. Change other side.
change reverse, change both arms, backward rotation, change reverse, change alternate, change reverse, change exercise, change exercise, to touch, retouch and stretch up back. Change to touch, change inside, change exercise, 3 touch, stretch up, change exercise, other side, change exercise, side to side bend, change exercise, other side, exercise, now jumping, start jumping, normal jumping, just 5 jumping exercise, okay, continue, very good, skipping action, very good, skipping jump, change, jumping jacks, very good, change exercise, front back foot, change exercise, single side high knee, side, other side, alternate, front kicks, side kicks, change legs, now bring your button, shake your arms and legs, हमारा 12 मिनट कंप्लीट हुआ तो मेंबर वर्क में जाएंगे हम टोटल 10 एक्सरसाइजेस है मेगा एंड अक्षय डेमो देंगे पहले आप देख लीजिए एक्सरसाइज क्या है कैसे करना है प्रॉपर टेक्निक में एक्सप्लेन करूंगा करने के लिए फर्स्ट पुशअप है पुशअप एक्सरसाइज मेगा शो डेमो प्रॉपर पुशअप ज्यादा वाइड ग्रिप नहीं लेना है ज्यादा क्लोज ग्रिप नहीं करना है आपके शोल्डर के विड्थ के अकॉर्डिंग अपना हाथ खोलना है सामने देखना है लुक स्ट्रेट और बॉडी स्ट्रेट रखना है ओके नेक्स्ट स्क्वाट प्लस वन लेग शूट अल्टरनेट लेग शूट स्क्वाट परफॉर्म करना है देन लेग शूट करना है अल्टरनेट एक बार राइट और एक बार लेफ्ट लेग शूट ओके सेकंड एक्सरसाइज थर्ड एक्सरसाइज माउंटेन क्लाइंबर लेग आउटसाइड हाथ क्लोज करना है थोड़ा और दोनों पूरा बॉडी
Up. Okay, next back extension. Next exercise, alternate high knees. Okay, so next shoulder tap. फुल प्लैंक पोजीशन में आ जाना है और शोल्डर टैप करना है, अल्टरनेट शोल्डर टैप. नेक्स्ट एक्सरसाइज बाइसाइकिल क्रंच. Okay, so next exercise tapping on the spot. टैपिंग करना है ऑन द स्पॉट फास्ट एज मच एज आप जितना कर सकते हो. ओके, सो नेक्स्ट कमांडो प्लैंक. नाइन्थ एक्सरसाइज और 10th एक्सरसाइज लास्ट लंजेस, अल्टरनेट लंजेस. फुल लेग डाउन, बेंट बैक पे बेंट करना है. ओके, सो अपना आज का वर्कआउट इतना ही है. टोटल 10 एक्सरसाइज है. 45 सेकंड के लिए वर्कआउट करेंगे और 15 सेकंड बीच में रेस्ट रहेगा. टोटल 1 मिनट ड्यूरेशन है और हमारा टोटल 10 एक्सरसाइज और एक ही सेट है. 10 मिनट का टोटल कंडीशनिंग वर्कआउट है. तो सभी एथलीट्स रेडी हो जाइए. अगर कोई पानी पीना चाहता है तो बीच में ड्रिंक योर वाटर. सो बी रेडी. एथलीट्स अपना कैमरा सेट कर लीजिए, अभी स्टार्ट करेंगे. 5 seconds to go. Ready? Position. First exercise, push up. Ready? Good, good, very good, very good. Come on, 30 seconds over, 15 seconds more. Very good, very good. Five seconds. 15-second rest. Shake your arms. Just relax, walk around. Next exercise, squat, one leg shoot. 5 seconds to go. Ready? Good, very good. Side view. Very good. Come on, good, very good. 10 seconds more. Fifteen seconds rest. Shake your legs. Our next exercise, mountain climber. 5 seconds to go. Ready, come on, position. Legs outside रखना है. Very good. Continue, continue. Good, very good. Athletes, come on, be high.
15 seconds off. Shake your legs and arms. Walk around. Shoulder legs कीजिए. Take deep long breath. Recover yourself. Next exercise, back extension. Lay down. 5 seconds to go. Ready. Very good, very good. Come on, come on, come on. Good, very good. Twenty seconds over. 25 seconds more. Ten seconds to go. Very good. Shake your arms and legs, relax. Take deep long breath. Next exercise. Alternate high knees. High knees, alternate. Ready. Very good. With arm action. Alternate arm should be performed with high knee. Very good. Knee high. Continue, continue. Very good. Jumping, jumping. Come on. Very good. 5 seconds to go. 15-second rest. Shake your legs and arms. Walk around. Take long breath. Okay, next exercise. Shoulder tap. Full plank position में आना है और shoulder tap, alternate shoulder tap करना है. Okay, ready? Come on, good athletes, very good. All are doing very good. Ten seconds to go. Fifteen-second rest. Shake your arms and legs. Walk around. Next exercise, bicycle crunches. Bicycle crunches. Next exercise. 5 seconds to go. Ready. Good, good, very good, very good. Good, very good, very good, very good. 20 seconds over, 25 seconds more. Good, good athletes, good, very good. Come on, be high. जोश बना के रखना है, जोश को हाई रखना है एक्सरसाइज करते हुए. 5 seconds to go. 15-second rest. Next exercise, tapping on the spot. Fast tapping करना है जितना आप कर सकते हो. On the spot tapping.
with arm action. Ready? Arm action also. Very good. Tapping, fast tapping, fast tapping. Arm section also very good. Tapping, tapping, tapping with your feet. Very good. Maintain, maintain. Very good. 30 seconds over. 15 seconds more. Good. Very good. Very good. 5 seconds to go. 15 second rest. Shake your legs and arms. Ninth exercise. Next. Commando plank. Ready. Position. Body should be straight. Look straight. Look straight. Very good. Maintain, maintain. Very good. Excellent. Very good. Come on, guys. Very good. 30 seconds over. 15 seconds more. Good, and Priya. Good. Very good. Come on, come on. Five seconds to go. 15 second rest. Next exercise. Lunges, alternate lunges. Last exercise. Come on, guys. Ready? Very good. Come on with arm action. Very good. Come on, very good, very good. Good, 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 very good, very good. Come on. Five seconds. Very good. Good workout. अच्छे से किया सभी ने. Now, relax. Cross around. Shake your hands around. Left finger. Relax. Breathe. Recover yourself. Take long deep breath. Now, इसके बाद में कूल डाउन करेंगे. स्ट्रेचिंग के लिए जाएंगे. ये हमारा जनरल कंडीशनिंग का फुल बॉडी के वर्कआउट था. फर्स्ट डे में है और आगे आने वाले सेशन बहुत इंटरेस्टेड है एथलीट्स. आपको जानकारी के लिए बता दूं, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 3 दिन वीकली हमारा सेशन रहेगा और बीच में 3 दिन आपको रेस्ट है. ज्यादा रेस्ट है और ज्यादा वर्कआउट है. इस बार हम जो वर्कआउट है इंटरमीडिएट लेवल है, तो थोड़ा अच्छे से ज्यादा वर्कआउट लेके आएंगे आपके लिए करने के लिए. तो बहुत इंटरेस्टेड प्लान्स भी है. अच्छा एक्सरसाइज, नया एक्सरसाइज भी आपकी इंटरेस्ट के लिए बना के डिजाइन करके लेके आएंगे. तो पूरे इंटरेस्ट के साथ आना है प्रोग्राम में और ज्वाइन करना है एक्सरसाइज. सो नाउ कूल डाउन करने के लिए रेडी. स्ट्रेचिंग करेंगे. स्टार्ट स्ट्रेचिंग रहेगा नेक टू टो.
Change exercise. Change, shake your arms. One. Side. Shoulder. Okay, single arm. Stretch and hold 8 to 10 seconds. Breathe continue. Don't hold your breath. सांस को रोक के रखना नहीं है. Change the other side. Change exercise. Change exercise side. Change exercise. Change the other side. Stretch down. Stretch up and down. More down. Knee should be straight. Knee bend नहीं करना है. Back stretch. Side side. Change exercise. Spread your legs. Stretch down. Hold your toes. Down dog pose. Change exercise. Change. Change side. Change size. The side.
कि सो हमारा कूलिंग डाउन पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। So I request the program, close the session. Thank you so much, sir. Thank you, Jayanta sir, and thank you, Andres sir, and thank you all the participants all over the India. We are signing off for today. We will meet you on Saturday. Thank you. Done.